On the indirect taxes. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Irfan Nadeem, Mr. Masood Naqvi, Mr. Ibrahim Siddharth, Mr. Hussain Basrai and worthy guests. I would like to dilate on indirect taxes principally, but I would also like to say something about the general state of economy, and I would like to relate more on the tax policy side and the economic policy side of the aspect rather than talking on the budget like a lawyer, because I am personally not a lawyer. And I would like the accountants to be more focused on economic side of the matter rather than taking one perspective. This is the aim of my speech today. The economic side has already been discussed by Mr. Masood Naqvi. I would not like to dilate on this matter further, but I would just like to say that things are not that good. And what I am saying, that large-scale manufacturing, which is one of the major contributory of tax, and I want to relate it with the indirect taxes, has gone down by 7.7%, and the export have gone down by 3%, and the import has gone down by 9%. The positive side is agriculture, which has increased by 4%, which is a very positive side. So this is the overall picture. I don't want to dilate much on this chart. It has already been discussed by Mr. Masood Naqvi Sahab. But if you look at the overall scene of this country, the country is like this. How long we will remain like this? Growing poverty of the people in the country, this is not sustainable. Our existence will be questionable. We cannot live like this forever. We are empty-handed. Search state of the people and the country. These hands will not always have the begging bowls. Guns can be there and will be there if deprivation continues. These hands need to be given books. We have to be very radical in our thinking now. We cannot keep the deprived continuously deprived. आज इतना खराब हालात में हम खड़े हैं फॉर द पीपल अराउंड दिस कंट्री. आप लोग बैठे हैं, आप सर गाड़ियों में आए हैं सारे, मैं भी आया हूँ और हम इसलिए बैठे हैं, बट द सिचुएशन इन द कंट्री इज़ नॉट दैट गुड. एंड आई वुड जस्ट समराइज द सिचुएशन इन वन शेर. अब बुए गुल ना बादे सबा मांगते हैं लोग, वो हफ्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग. अब इतनी हफ्स हो गई है कि इर्रेशनल चेंजेस की लोग बात करने लगे हैं, and we can't afford that. Now the question of Pakistan is economic survival. There is a trade deficit of 18 billion rupees, and the overall trade deficit of this country since this country has been made is 275 billion rupees. This country has had a trade deficit of 275 billion rupees since it has been made. This is totally unviable situation. You cannot have a country where you can have 275 billion trade deficit that has accumulated. जब 275 बिलियन का डेफिसिट होगा तो कोई देगा तो कोई उसकी कीमत भी होगी. Then there is current account deficit of 8 to 9 billion rupees. रिजर्व आपके 11 बिलियन के हैं. फिर आप 6 महीने बाद खड़े होंगे, हम सारे यहीं खड़े होंगे. Then there is growing unemployment. Now we are talking about retrenchment in the industry. Around 5 million skilled labor will be out in 2009 on the roads, and we don't know how much is unskilled will be on the road. That's a very big problem, and that is how we have to make, when we made the budget, we have to think like that. I cannot concentrate on ifs and buts and commas, full stop in the budget. And then there is a growing poverty, food, clothing, shelter, medicine, and then there is a downturn in the manufacturing sector. For the last, I have been talking here in this stage and every stage is that we have in the last 20 years since 1990, we have made this country a trading state. I have been saying here very long time, and I was the only voice. I was saying, please don't talk about this capital stock exchange. Please talk about manufacturing and agriculture. But you were not listening. Even I can say today that I was giving personal threats when I was talking about taxing the capital gains. That why should you talk about capital gains taxation? So we were talking about tradings. We were talking about the trading of goods, trading of plots, trading of this and trading of that. But that has led to a continuous downturn in manufacturing sector. Then there was continuous underutilization and misutilization of public sector development program. Islamabad
has become very big and provinces have become very small. We have got a 640 or 700 billion rupees PSDP. Where the money will go, how the money will go, we don't know. There is a lack of harmony between provinces and federation on delivery of services to common man. No conclusion of NFC award. Other fundamental economic question. Islamabad is getting bigger and bigger and bigger. You look at the amount available in Islamabad and the amount available in the provinces, there is a complete disparity in these things. The ground reality which we are not ready to understand, we are not ready to accept, that the classical economic theories have failed. GDP percentage, tax budget deficit, trade deficit, inflation, ये वो सब. मैं उस दिन एक प्रोग्राम में था, लम्स के एक प्रोफेसर के साथ मेरी बहस हो रही थी. मैं उसे यही कह रहा था कि सारी इकोनॉमिक थ्योरीज फेल हो गई, वहाँ भी फेल हो गई, हमारे यहाँ भी फेल हो गई. तो अब हमें वी आर स्टिल अशेम्ड ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस. हम आज भी लगे हैं कि जी ये रेशियो होगा तो फिर ये आंसर आएगा, तो ये रेशियो होगा तो ये आंसर आएगा. बट देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर दिस. कॉमन मैन इज नॉट इंटरेस्टेड इन जार्गन्स एंड फिगर्स. देयर इज अ कंप्लीट डिसइंटरेस्टेड मासेस. All of you, as I think Ibrahim Saab bhi bol rahe the, it was looking as if he was talking, he is not a part of this country, he is talking to someone who is alien. But I don't consider myself an alien. I consider myself a part of this country, and but we have to carry people along. But there are disinterested masses, and a new economic world is emerging where Pakistan is being bracketed with countries like Afghanistan. We are not bracketed with countries like India, China, Brazil, Turkey, Brazil, Russia. We are now bracketed like Afghanistan, Somalia, Chad, Mali, and things like that. So that is a real state. This requires a revisit to the fundamental basis of the creation of this state and the existence. अब हमें ये सवाल करना पड़ेगा आज कि ये मुल्क हमने क्यों बनाया था और अगर इसको बाकी रखना है तो क्यों रखना है. This is the very fundamental question. कि अगर ये मुल्क हमने क्यों बनाया था और इसको बाकी रखना है तो क्यों रखना है. इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज द ओनली बेसिस. Economic well-being of the Muslim majority of provinces of subcontinent is the only basis. It was not. Do we know the problem? Yes. We know the problem. The solution is very simple because economics is not our subject. We have got two subjects, religion and security state. हमारे दो मसले हैं. हमारे इकोनॉमिक्स हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी रिलीजन है, हमारी प्रायोरिटी सिक्योरिटी स्टेट है फॉर द लास्ट 60 ईयर. But this country was not made for religion, this country was not made for security state, this country was made for the economic well-being of the Muslim majority provinces of subcontinent. Look at this picture which has been the recent analysis of the American budget proposals. This was the outlay and the revenue of the Bush era and the outlay and revenue of the Obama era. I want to show this chart for two reasons. One reason what I am to say that they are spending money. They are not listening to classical economics. They are not listening to classical economics. Obama is spending money. Maybe right or wrong. But the question is, he is going for a change. Because he can't afford to have a smaller current account deficit. Because there will be a chaos in USA. This is the reason what I am trying to say, if we want to keep our budget deficit at a lower level, तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे. हमें स्पेंडिंग करनी पड़ेगी. There is no second choice. And the second thing I want to show this chart is that they are planning for 2019. The America has already planned their outlays for 2019, but we do not see beyond 6 months. So what I am trying to show this chart to you is that the question of budget deficit and trade deficit is a very fundamental question, and we have to sort out this issue, otherwise things will not be that good. Do we realize the problem? चारा गरीब बीमारी दिल की रस्में हुस्ने शहर नहीं, वरना दिल भरे नादा भी इस दर्द का चारा जाने हैं. इशू ये नहीं है. हमें पता है प्रॉब्लम क्या है. द क्वेश्चन इज नॉट दैट वी डोंट नो द प्रॉब्लम, वी नो द प्रॉब्लम, बट एज अ नेशन इट इज नॉट अवर प्रायोरिटी टू सॉल्व द इकोनॉमिक इश्यूज. इट इज नॉट इन मुस्लिम साइकी. हाउएवर वी डोंट हैव टू मेनी चॉइसेस नाउ. हमारी साइकी में ये बात नहीं है. हमें प्रॉब्लम का अंदाजा है, व्हाट वी आर डूइंग, वेयर वी आर गोइंग, वी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, बट हमारी साइकी में वो चीज नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज
द सॉवरेनिटी, डिस्पैरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैन नॉट गो सेपरेटली. जो शख्स कमाएगा वही खाएगा नासिर, औरों को कोई अपनी कमाई नहीं देगा. Sovereignty of the nation depends on economics. Foreigners will not support us without a cause, and there will never be free lunch. As I said in the first slide, we had a trade deficit of 275 billion rupees since the country has been made. तो जो 275 बिलियन रुपीस हमें दे रहे हैं वो आपसे कोई कीमत लेंगे. फिर आप कीमत देते हैं, फिर आप वापस जाते हैं, फिर आप कीमत देते हैं, फिर आप वापस जाते हैं. ये सिलसिला नहीं चल सकता. And secondly, when there will be disparity in the country, within the country, then this country cannot last if the disparity goes on forever. But now we see how we can resolve it. This is our theory. Now the budget has said, and I go with the basic theory of the budget. If you look at the budget document, and he says, Shaukat Tareen Sahab say, whether we believe it or not believe it, let us understand what he was trying to say. Maybe we are wrong, we are right. He says that this is a budget with a human face. You must have read it somewhere, and you must have seen it on the paper. What does budget with a human face means for me? I say budget with a human face means you have to go for direct intervention. Direct intervention means leaving aside the classical theories. You have to go out of box. Now you can't say कि जी 2% इन्फ्लेशन होगा तो 4% होगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, शब्बर साहब फैक्ट्री लगाएंगे तो 4 आदमी को एम्प्लॉय करेंगे तो पैसे आएंगे तो वो रोटी खाएगा. This was the theory. I agree that theory was not right or wrong. I don't want to discuss on that theory. But what I am saying, the human face will be direct intervention in the economic life of the people. This is the only way of budget with human face. And for that thing, you need sustaining employment and creating atmosphere of growth. आपको जो एम्प्लॉयमेंट आज है, आज टुडे, उसको सस्टेन करना पड़ेगा और एटमॉस्फेयर ग्रोथ का बनाना पड़ेगा. दैट कैन ओनली बी क्रिएटेड व्हेन यू सस्टेन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग. देयर नो थर्ड चॉइस. उसके लिए आपको DFI बनाना पड़ेगा, आपको उसके लिए RTC बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सपोर्ट फंड बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे आपको साइट को मुफ्त बिजली देनी पड़ेगी. यू कांट से कि ये कॉस्टिंग में आती है, कॉस्टिंग में नहीं आती. यू हैव टू गो डायरेक्ट इंटरवेंशन इन द लाइफ ऑफ द कंपनीज. जब USA GM के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? जब सिटी बैंक के शेयर US गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है तो हम क्यों नहीं इंटरवीन कर सकते? वाई वी आर सो होलियर देन द पोप कि हमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ही चलना है. Secondly, there will be another direct intervention. That direct intervention means there are people who are now so below the poverty line that if you don't give them support, they will come on the road. That is direct intervention in the life of the personal people. That is the program like Benazir Income Support Program. I am not a supporter of that program in that sense that I don't want people to spend 70 billion rupees by paying 1,000 rupees each to the family. Conceptually, you may be right. But I believe that is not a right aspect. You have to have सस्ते तंदूर, you have to have राशन शॉप, you have to have utility store, क्योंकि आपने इस वक्त उसको सपोर्ट देनी है जिंदा रहने के लिए. So what I am trying to say कि ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट इंटरवेंशन का, ह्यूमन फेस का, वो आपको लाना पड़ेगा. और मैंने जब बजट स्पीच आई थी उससे भी मैंने इमीडिएटली यही कहा था कि मुझे इसकी डायमेंशन सही नज़र आ रही है कि ये उस तरफ जा रहे हैं कि ये उसको रियलाइज कर रहे हैं. बट the dimension of the budget is toward that goal, and I think is right. However, the unanswered question is whether there is a political will to do it or not. That's the second question, very important question. And whether we have resources to do that, how far we can stretch the budget deficit. And thirdly, whether we have a capability and capacity in the government to do that. क्या गवर्नमेंट के पास ये कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है कि वो ये कर सकती है? Because what I am trying to say, there is a need for direct intervention of the government in the economic life of the companies as well as economic life of the people. ये एक बहुत बड़ा टास्क है. उस टास्क को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, लोगों के लाइफ में एंटर होना पड़ेगा. बिकॉज वी हैव बीन रनिंग, वी वर डूइंग अ लाइफ. हम लोग 20 साल से इकोनॉमी चला रहे थे जिसमें गवर्नमेंट को हम बाहर कर रहे थे. वो सही था कॉन्सेप्ट, वो अच्छा गलत कॉन्सेप्ट नहीं था. इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट छोटी हो रही थी, गवर्नमेंट इकोनॉमिक लाइफ से बाहर हो रही थी. दैट वाज द राइट कॉन्सेप्ट और नॉट अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. बट अनफॉर्चुनेटली द वे द वर्ल्ड हैज चेंज, नाउ गवर्नमेंट को वापस आना पड़ेगा इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल. वेदर वी विल एबल टू डू इट और नॉट, whether we have the capability or do it not, that is not a question of law, that is not a question of accounting, that is not a question of law, that is a question of economics and sociality. The question is, परवीन शाकिर का एक शेर है, फैसले सारे उसी के हैं हमारी बाबत,
इख्तियार अपना बस इतना कि ख़बर में रहना। ये जो इब्राहिम साहब कह रहे थे तकरीबन यही बात वो कह रहे थे कि हमें तो बात से पता लगता है कि ये हो गया, इससे ज़्यादा हमारा कोई रोल नहीं है। दिस इज राइट बिकॉज देयर इज अ डिस्कनेक्ट, देयर इज डिस्कनेक्ट बिटवीन पीपल, पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कोई बात मानता नहीं है, सुनता नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर रेवेन्यू ऑफिसर का भी नहीं है। द क्वेश्चन ये है कि जो पार्लियामेंट है, डिसीजन मेकर है, उसका डिस्कनेक्ट है अवाम के साथ। इसका ये डिस्कनेक्ट का मतलब ये भी मैं नहीं समझता कि वो लैंडलॉर्ड्स हैं और वो पजेरो वाले हैं, ये मैं सियासी बातें समझता हूँ, ये रेलेवेंट बातें हैं। द क्वेश्चन इज जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसका लिंकेज अवाम से नहीं आ रहा। जो बंदा एमएनए बन के आया है, इवन द पीपल एमएनएज और एमपीए जो कराची से गए फ्यूडल नहीं है वो, बट वो भी उस इकोनॉमिक्स को उस तरह नहीं समझते जिस तरह होना चाहिए। बिकॉज जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुस्लिम साइकी में इकोनॉमिक्स नहीं है, हमारी साइकी में इकोनॉमिक्स नहीं है, हमारी साइकी में रिलीजन और मिलिट्री है। जब तक आप साइकी चेंज नहीं करेंगे, जब तक आपका मसला हल नहीं होगा। इट इज नॉट ट्रू फॉर द लैंडर्स। देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द पार्लियामेंट, पीपल एंड द इकोनॉमिक्स। देखिए आज आम आदमी का लिंकेज कोई ताल्लुक नहीं बना। आप एक आम आदमी से पूछें, उसको बजट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हिना रब्बानी खैर कह रही हैं वो कहती रहे, उनको इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है जी जो कहना है कहते रहे। द क्वेश्चन इज दिस सोसाइटी, द मॉडर्न सोसाइटी कैन नॉट लिव विद द डिसइंटरेस्टेड मासेस। It is not the question is who is sitting in the parliament. The question is whether this society has taken economics as a subject or not. We are all waiting for an unknown future. But what I say, this country is beautiful. Its real beauty is yet to be known. अभी सामने नहीं आई तस्वीर बहुत खूबसूरत है इस कंट्री की, बट हमने उसको छुपा दिया है, हम उसको सामने नहीं लाना चाहते। दिस कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, बट वी हैव नॉट सीन द कंट्री इन रियल सेंस। नाउ कमिंग बैक टू द थीम ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेशन, आई थिंक इफ यू लुक एट द होल, आई विल नॉट डायलाइट ऑन द डायरेक्ट टैक्सेशन, आई विल लाइक ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेशन ओनली। जो बजट का थीम है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का वो ये है कि अगर आप देखें सबसे कम अमेंडमेंट आपको मिलेंगी सेल टैक्स के अंदर। द लीस्ट अमेंडमेंट यू विल फाइंड इन सेल्स टैक्स। There are no major amendments in sales tax. This is a very positive step. It's a very positive step. However, at the same time, this is a reflection of complete failure, I would say, to tab wholesale and retail trade within the sales tax net. This is a very serious issue. We will not be able to resolve the primary problem of documentation of economy and improving debt tax to GDP ratio if this important aspect is not properly tackled. No resolve or resolution is apparent on this sector in the budget. मैं इसको अगला स्लाइड दिखाता हूँ, उससे आपको बात समझ आ जाएगी। देखिए मैंने इसको सिंपल कर दिया है। हमारी इकोनॉमी के 4 कंट्रीब्यूटर हैं, होलसेल रिटेल ट्रेड, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग। ऑलमोस्ट बराबर हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है 23 को 24, 25, बट जी 4 सेक्टर हैं। जो कंट्रीब्यूशन है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है। एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन 0 है एंड आई बिलीव इट शुड रिमेन 0। ये मेरा कन्विक्शन है, आई डोंट डायलाइट ऑन दैट सब्जेक्ट। As far as services is concerned, they are being brought in the sales tax net now, whether right or wrong, but they are being brought. The problem area lies with the wholesale retail trade, जिसको हम टैब नहीं कर पा रहे हैं। This is the serious blow what I am saying in the sales tax. I don't see any policy, any framework कि दुकानदार जो हैं हर गली में 500 दुकानें हैं, सारे बाजार हैं, माशाल्लाह सब पैसे वाले हैं, कोई परेशानी नहीं है, वो टैब नहीं हो रहे और उसको ना इनकम टैक्स में टैब किया जा रहा, ना उसको टैप किया जा रहा सेल टैक्स पे। हम सारा दिन तकरीरें करते हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के खिलाफ, बट हमें दुकानदारों की इनकम नज़र नहीं आती, हमें ट्रेडर्स की इनकम नज़र नहीं आती। द क्वेश्चन इज दैट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द बिग इकोनॉमी इज नॉट बीइंग टैप्ड। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द बिग सोसाइटी। दैट आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज थिंग। एंड देन एक्सटेंशन ऑफ वैट फॉर सर्विसेज, ये एक इशू था। इट इन प्रिंसिपल इट इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। देन द सेकेंड एस्पेक्ट विच आई एम वेरी कंसर्न इज that we have to curb import. I find the approach of the government is slightly softer on this side. Government को इतना strong जाना चाहिए था, उसकी तरफ वो नहीं गए। We need a strict policy for balancing the trade deficit. It is not a desire, it is a compulsion whether we like it or not. देखें ये वो मुल्क है जिसमें पैम्पर भी बाजार से इम्पोर्टेड मिलते हैं, इसके अंदर आपको
फूड भी मिलता है, पानी भी मिलता है, हर चीज़ इंपोर्टेड मिल जाती है। यहाँ से 2 कदम पे दुकानें हैं, आप चले जाएं, जो चीज़ चाहें इंपोर्टेड ले लें। वी आर इम्प्रेस्ड बाय जद्दा एंड दुबई एंड दीज, वहाँ से आते हैं, फ्लाइट होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी दुबई बन जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क दुबई नहीं बन सकता। आई हैव बीन सेइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, नाउ पीपल हैव टू रियलाइज कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम कंटिन्यूसली, I want to go to my first slide. We cannot have $8.9 billion trade deficit, net deficit. हमें import को curb करना पड़ेगा, whether we like it or not. And that means curbing the trade economy. I will come back to this thing. Then the question is survival of domestic industrial sector. Future will be based on domestic market stabilization. Start thinking in rupee terms, dollarization of economy. देखिए, दुनिया की इकोनॉमिक्स जब आगे आएगी, उसमें कोई रोल अब इंटरनेशनल ट्रेड का नहीं होगा फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री। द कंट्रीज विल बी बेस्ड ऑन व्हेन दे लोकली स्टेबलाइज देयर इकोनॉमीज। हम तो सारा दिन डॉलर में सोचते हैं, खनानी, कालिया, गैलेक्सी, ये वो सब ये होता है सारा दिन, डॉलर अकाउंट, डॉलर डेबिट, डॉलर क्रेडिट, डॉलर रुपीज। द क्वेश्चन इज, बट आई कैन अश्योर यू, यू मस्ट हैव रेड द इकोनॉमिक लिटरेचर इज कमिंग इन नाउ। द फ्यूचर इकोनॉमी विल नॉट बी the international economy, international trade. For another 4-5 years, the economies will be based on domestic market stabilization. Domestic market पे emphasize करना पड़ेगा आपको. We have been concentrating too much on export and imports. We have not been concentrating on domestic market stabilization. And then import substitution, which is also domestic market stabilization, which we are not doing. So what I am saying, the theme of the indirect taxation should have been, and I think by and large, that is why I say, whether people like it or not, the direction of the budget is not, I still say, not wrong. It may be somewhere, some way, some nitty-gritty, but direction is not wrong. Whether we will implement or not, because I understand that people sitting around may not like it, because we are too tuned to trading economy, we are too tuned to stock markets, we are too tuned to leasing and financing, so we may not see what does actually agriculture and manufacturing growth means. Their taxes are substantially borne by the manufacturing sector, as I said in that slide. Services sector is now being brought in. The untouched sector is wholesale retail trade. This leads to incentive for trade sector. देखिए आज क्या हो रहा है, आज इस मुल्क के अंदर आपका यूटिलाइजेशन पैसे का क्या है? आप प्लॉट खरीद लें, आप शेयर खरीद लें, आप कारोबार कर लें, आप रियल एस्टेट खरीद लें, आपको कितनी रकम का सवाब है इंडस्ट्री लगाने में? प्रोटेक्शन आपके पास कोई है नहीं, सिक्योरिटी आपके पास है नहीं। तो ये पूरा पैराडाइम हमने, अनफॉर्चुनेटली पैराडाइम हमने अपने हाथ से बनाया है। ये पैराडाइम हमने अपने हाथ से बनाया है, हमने प्रमोट किया है। वी वर ल्योर्ड बाय, आई एम अगेन सेइंग, वी वर ल्योर्ड बाय द दुबई मॉडल। क्योंकि 1 घंटे की फ्लाइट है, वहाँ जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, वापस आते हैं हम कहते हैं हम भी ऐसे ही बनाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट अ मॉडल वर्केबल फॉर अस, बिकॉज वी हैव टू सस्टेन 16 करोड़ पीपल फॉर टू फीडिंग। That we don't understand. गुजर रहे अजब मरलों से दीदा ओ दिल, शहर की आस तो है जिंदगी की आस नहीं। इस वक्त इंडस्ट्री का हाल ये है, इस वक्त क्वेश्चन इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं है, इस वक्त साइट और काइट में इशू ग्रोथ का नहीं है, इस वक्त इशू है सर्वाइवल का, कि क्या फैक्ट्री चलानी है या बंद करनी है, फैक्ट्री बंद होनी है या चलनी है। वी आर टॉकिंग अबाउट survival of the manufacturing sector. We are not talking about the growth of the manufacturing sector. We had a 7.7% minus manufacturing sector. Whatever we do, there are 2 choices for me. Either I can spoil my indicator of big factors, or can I allow the site people, factories to close in the light of the ideal economic environment, sitting at the State Bank of Pakistan and Q Block, and let 5 lakh people on the site come on the road? I have 2 choices. या तो 5 लाख आदमी जो साइड में नौकरी करने जाता है वो सड़क पे आ जाएगा, या मैं बैठ के अपनी फिक्र में लाता रहूँगा स्टेट बैंक में और क्यू ब्लॉक में बैठ के मेरी फिक्र में लाता रहूँगा। मेरा 2 चॉइसेस हैं, मैंने क्या करना है? फिक्र में ला लूँगा, बड़ा अच्छी फिक्र बन जाएंगी, 8%, 6.5%, 5.6%, 12%, जाके किसी को प्रेजेंट कर दूंगा। द चॉइस इज डिस्क्रिमिनेशन। आई डोंट थिंक वी हैव चॉइसेस एट दिस टाइम। द इशू इज नॉट ग्रोथ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट फॉर सर्वाइवल। इस वक्त इंडस्ट्री का इशू फेथ और ट्रस्ट फॉर सर्वाइवल है। क्या उस फैक्ट्री को उसने बेच के चले जाना है या ये फैक्ट्री चलेगी? दिस इज द क्वेश्चन। दिस इज नाउ अ सोशल इशू। इफ वी डोंट हैंडल इट प्रॉपर्ली देयर विल बी अ क्योस। ओबामा ने जो मैंने स्लाइड दिखाई थी वो बेवकूफ़ नहीं है,
वो जो इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट लेके चल रहा है वो पागल नहीं है, उसने भी सोचा है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्योस इन सोसाइटी। हम क्योस की तरफ जाना चाहते हैं या हम फिगरे में लाना चाहते हैं? वी कैन नॉट अफोर्ड रिट्रेंचमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारी शक्ल इस वक्त इस तरह की है तकरीबन थोड़ी सी। Our economic life is like this. We don't know where to go. All illegal connections have to be removed from the trade. What are illegal connections in a society? Exchange control mechanism. डॉलर लें, खाना निकाले से ले गए, लाएं, खरीदें, आएँ जाएं, जो मर्जी करें। दुनिया में कहीं ये नहीं होता। एक्सचेंज कंट्रोल को हमने अब्यूज़ का एंड कर दिया है। ये वाहिद कंट्री है जहां पे जो दिल चाहे करें फॉरेन एक्सचेंज के साथ, कोई कुछ नहीं पूछता। आई कैन अश्योर यू इवन द अमेरिकन एक्सचेंज कंट्रोल इज नॉट लाइक अस। वी आर रनिंग पैरेलल एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम इन दिस कंट्री। मेंबर टेक्सिस साहब यहाँ बैठे हैं। वी हैड अ सीरियस डिस्कशन ऑन दिस मैटर, दैट इज व्हाई दिस इशू ऑफ सम स्कैंडल केम इन एंड पीपल आर पेइंग अंडरवाइज प्रोडक्ट्स फ्रॉम एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम। वी हैव कंप्लीटली अब्यूज अवर एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम. We have completely abused our underinvoicing system. We have completely abused our Afghan transit trade. We have incentivized import and we are allowing untaxed money. ये मैंने 5 चीज़ें आपको लिख के दे दी, आप ये 5 चीज़ें आज करेक्ट कर लें, आपका मुल्क चेंज हो जाएगा. I can assure you, it country will change because we have been tuned. Again, I am saying we have been tuned. हमने डॉलराइजेशन इकोनॉमी की है, we हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ये वो मुल्क है जहां पे आप रुपये लेके जाएं, डॉलर में कन्वर्ट करें, बाहर लेके चले जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है. Allowed legally, not illegally. So what I am saying, with these kind of exchange mechanism, how can you protect your local industry? So these illegal connections जो इस पोल के आसपास नजर आ रहे हैं, ये निकालने पड़ेंगे आपको. But I don't think कि हमारे पास वो conviction है. But I have faith and I think I have age also to do this. Somebody may not like it, but I have age. I think we will inshallah do it. एक्सटेंशन ऑफ द सर्विसेज, हमारा फंडामेंटल चेंज हुआ है था बजट में. 4 सर्विसेज को हमने फर्दर ऐड किया है जो पहले नहीं थी, और 4 सर्विसेज को इंक्रीज़ किया है ड्यूटी. एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर, पोलिटिकल पे पहले नहीं थी, वो ऐड की गई है. SMS ऐड किया है. सर्विसेज ऑन स्टॉक ब्रोकर ऐड किया है, और पोर्ट एंड शिपिंग को ऐड किया है. स्टेबल पहले भी था, उसका रेट जो है वो सामने दिया हुआ है. ये नए एडिशंस हैं, ये पहले सर्विसेज नहीं थी, ये वैट बोर्ड में होंगी, इसका तरीका है. दूसरे जो सर्विसेज अब रिवाइज की गई हैं वो टेलीकम्युनिकेशन है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है. बैंकिंग पे जो सर्विसेज है उसकी जो वैट लेवी है वो सिर्फ ऑल सर्विसेज पर है एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड मार्कअप. पहले वो उसके थी, मगर मेरा इसमें व्यू ये है कि इसमें क्योंकि ये इन कॉन्सेप्ट आई सेड इज अ राइट स्टेप, बिकॉज आप वैट को एक्सटेंड कर रहे हैं सर्विसेज पे. आई पर्सनली एग्री विद दिस, राइट स्टेप है. बट इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा नहीं होगा कि एडजस्टेबल है. ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर देगा वो इसको एडजस्ट कर लेगा अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, और नेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आएगा. अगर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंकिंग सर्विस पे देगा वैट, तो उसको वैट एडजस्टेबल हो जाएगा अगेंस्ट दी इज आउटपुट टैक्स, और नेट कम आएगा. बट कॉन्सेप्चुअली ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है. इसके 2 मॉडल थे कि आप इसको 5% कर देते डायरेक्ट या वैट करते एडजस्टेबल. प्रिंसिपली ये ठीक है, बट इसकी रिकवरी होगी वो ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ये एडजस्टेबल अगेंस्ट दी सेक्टर है. इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो बैंक वगैरह में इसकी एक प्रोसीजरल इशू है कि इसकी इनवाइस कैसे इशू होगी और कैसे होगा, वो प्रोसीजरल मैटर्स हैं दैट कैन बी हैंडल. अब मैं आता हूँ जिन चीज़ों को जो हमने टच नहीं की, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने जो चीज़ टच नहीं की वो अंडर इनवाइसिंग है. हमने कोई प्रॉपर मेजर अभी तक नहीं लिया है अंडर इनवाइसिंग के लिए. मैं अंडर इनवाइसिंग को बार बार इसलिए टच कर रहा हूँ कि अगर आप अंडर इनवाइसिंग को टच नहीं करेंगे तो आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कभी भी टैप नहीं कर सकेंगे. हम ये कहते हैं कि हमारा दुश्मन अमेरिका है, मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि अंडर इनवाइसिंग की कितनी बड़ी क्वांटिटी चाइना से आ रही है. अंडर इनवाइसिंग का सोर्स क्या है? क्या हम चाइनीज अंडर इनवाइसिंग को कब कर सके? आज चले जाएं किसी बाजार में, चाइनीज प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है इनवाइसेस की, वो क्या है आपको पता है, मुझे पता है. डू वी नो, ऑल ऑफ अस डू चार्टर्ड अकाउंटेंट, डू ए रियल आइडिया हाउ अंडर इनवाइसिंग इज डन, how the money is paid, how this mechanism is done? I think if I talk too much, I may have a personal endanger on my life. But what I am trying to say, that can we survive a local industry where the goods are being imported at 10% of the real values? अब इसमें 2 तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि आप जाके उसमें कस्टम ऑफिसर को पावर दे दें, कस्टम ऑफिसर अमीर हो जाएगा.
दूसरा तरीका ये है कि आप उसको मैकेनिकली साइंटिफिकली सेटल करें और उसके मैकेनिज्म को सेटल करें, और उसके लिए आपको एक्सचेंज कंट्रोल मैकेनिज्म को हैंडल करना पड़ेगा। एंड हमने अभी तक अब्यूज एक्सचेंज रेगुलेशन को टच नहीं किया है। एंड आई स्टिल आस्क द क्वेश्चन, डू वी वांट अनदर खानानी कालिया स्कैंडल? Have we read, have we tried to understood what Khalani Kalia scandal was? I am not talking about the person or the school. What have we realized what this TT in and TT out means? How it is done? How the FE25 is related to the whole mechanism of payment on import? हम अकाउंटेंट से पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, बैलेंस शीट मिलाते हैं, कभी पॉलिसी आगे करते हैं, पीछे करते हैं. बट व्हाट आई एम सेइंग, हैव वी डन दिस सब्जेक्ट? देन द सेकंड क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट बिजनेस इज अफगान ट्रांजिट ट्रेड. अभी आपने अखबार में ऐड पढ़ा होगा, लीवर ब्रदर वालों ने दिया था कि उनकी 175 मिलियन टन की शायद इंपोर्ट है चाय की. ब्लैक टी अफगानिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं होती है. 75,000 टन अफगानिस्तान के लिए इंपोर्ट हुई है. 175,000 टन की टोटल इंपोर्ट है पाकिस्तान में ब्लैक टी की. 75,000 टन अफगानिस्तान के लिए इंपोर्ट हुई है. अफगानिस्तान में एक धेले की नहीं पी जाती है ब्लैक टी. तो हाउ कैन वी रन अ कंट्री, हाउ कैन वी सस्टेन अ इंडस्ट्री बाय दिस? दिस इज आई एम टेइंग द टैक्सेशन इशू. अनफॉर्चुनेटली हमारा विजन बहुत छोटा है अकाउंटेंट्स का. हम अपने टैक्स अकाउंट उसको उसी पे रखते हैं कि ये इस लॉ के अंदर ये होता तो ये होता है. इस तरह नहीं है. अकाउंटिंग और टैक्सेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. इसको इकोनॉमिक्स से रिलेट करना पड़ेगा कि जब तक हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, उसके स्टोरी को समझेंगे, हम लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं दे सकते. सेकेंड, लास्टली, हमने कैस्केडिंग और स्टैम्प ड्यूटी पे कभी कोई बात नहीं की है. इंडस्ट्री रिक्वायर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी. हाँ, आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्शन वॉल चाहिए होती है 10 साल के लिए. इंडस्ट्री 1 साल के लिए लगी होती है. आपने इंडस्ट्री लगाई आज, कल ड्यूटी का रेट बढ़ गया. ये नहीं हो सकता. तो जो सब्जेक्ट हमने टच नहीं किया वो है कैस्केडिंग और इंपोर्ट ड्यूटीज. There seems to be lack of homework while aligning the fiscal policy with the trade policy and the overall economic policy. इशू ये है कि हमारी जो फिजिकल पॉलिसी है मेरे हिसाब से उसका अलाइनमेंट ट्रेड पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ नहीं है. हम 3 अलग अलग ड्राइंग रूम में बैठे हुए काम कर रहे हैं. अनलेस हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिक पॉलिसी होगी, फिजिकल पॉलिसी वहाँ से ड्राइव होगी. वो फिजिकल पॉलिसी वहाँ से ड्राइव नहीं हो रही है और वो उसमें मिसमैच है. जब तक आप इस मिसमैच को नहीं करेंगे आपका मसला हल नहीं होगा. बट द रीजन इज दैट एवरीथिंग इज ओवर रूल्ड बाय सिक्योरिटी पॉलिसी. हर 10 साल के बाद हम नई जंग सवार करते हैं अपने ऊपर. वो क्यों सवार करते हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है. आप देख लें इस कंट्री के साथ हर 10 साल के बाद एक जंग सवार की जाती है इस कंट्री के ऊपर. 47 में हुई थी, फिर 65 में हुई, फिर 71 में हुई, फिर 79 में हुई, फिर 2001 में हुई, अब 2009 में हुई. हर 10 साल के बाद एक नई जंग इस मुल्क के ऊपर सवार की जाती है. ये मुल्क हर 10 साल के बाद एक जंग करता है फॉर सम रीजन. यू आर इंटेलिजेंट पीपल, यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस जंग इज इम्पोज्ड ऑन यू. So everything is camouflaged by the security policy. The question we have to understand, that India and Afghanistan are our neighbors. They are not our enemies. They are not our enemies. They are our neighbors. You cannot change neighbors. You have to learn to live peacefully with the neighbors. We have not learned to live peacefully with the neighbors. उधर हम कश्मीर का पंगा लेके बैठे हैं, उधर हम स्ट्रेटेजिक डेथ की बात करते हैं कि हम 300 मिलियन स्ट्रेटेजिक डेथ बना के बैठेंगे जब ये मुल्क चलेगा. तो ना ये स्ट्रेटेजिक डेथ चलेगी, ना ये कश्मीर का इशू चलेगा. ये नहीं चलेगा. तो when the security policy overrule every policy, then you are back to square one. मैं कुछ लोगों की इस बात से एग्री नहीं करता कि हमें समझ नहीं आती है. हमें समझ सब कुछ आती है. The question is, are we ready to change the fundamental dynamics of our country's economics? If we are not, then nitty-gritties are not to make any difference in this country. But at this present point of time, you cannot afford to have a war in 2 provinces and then say कि वहाँ जंग हो रही है, ये 2 provinces को अब छोड़ दें, यहाँ कुछ नहीं करेंगे. These provinces have to be sustained. उनकी economics अलग है, हमारी economics अलग है. आज सरहद में इशू सर्वाइवल का है, उनको जिंदा रहने का इशू है. मेरा जिंदा रहने का इशू नहीं है. मुझे इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए. तो अगर इस्लामाबाद बैठ के मैं पॉलिसी बनाऊंगा, पेशावर और कराची को एक जगह रखूंगा, तो पॉलिसी कभी नहीं बन सकेगी. पेशावर में जंग हो रही है, कराची में कोई जंग नहीं हो रही. कोई जंग नहीं हो रही कराची में. एंड वी आर ट्राइंग टू इम्पोज जंग ऑन अस. देयर नो वॉर इन कराची, देयर नो वॉर इन लाहौर. द वॉर इज हैपनिंग इन पेशावर एंड कोयटा. लेट देम फाइट द वॉर. वी विल सपोर्ट द वॉर, बट दैट वॉर शुड नॉट कम हियर.
Then another issue which has been which I think is very wrongly handled in this budget is carbon tax. This appears to be a substitution of petroleum development surcharge. It is in effect is not. मेरे हिसाब से ये पेट्रोल सरचार्ज का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मैं डिसएग्री करता हूँ. This PDS was the differential of the cost and ultimate price to the consumer. This is not. It appears that carbon tax will be fixed amount. Theoretically, carbon tax represents a charge for the use of petroleum products. इसकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है. There appears to be rationale that carbon tax reduce the consumption of petroleum. इसकी rationale ये दी जाती है कि जी कार्बन टैक्स इसलिए लगा रहे हैं कि लोग पेट्रोल का कंजम्पशन कम कर देंगे. लॉजिकली, थ्योरेटिकली वॉशिंगटन में बड़ा अच्छा लगता है, इंग्लैंड में बड़ा अच्छा लगता है कि पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो पेट्रोल कंजम्पशन कम हो जाएगी तो फायदा हो जाएगा. बिल्कुल अच्छी बात है, मैं एग्री करता हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान द बल्क ऑफ द डिमांड ऑफ पेट्रोलियम इज फिक्स्ड. इट विल नॉट चेंज. आप टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर तो पेट्रोल की डिमांड कम नहीं हो जाएगी. थोड़ा बहुत होगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा. बट इसमें एक और डिस्पैरिटी आ जाती है कि जो गरीब आदमी बस में आ रहा है वो तो आएगा बेचारा, तो उसको तो देना पड़ेगा. तो 132 बिलियन जो आप कार्बन टैक्स के खाते पे ले रहे हैं, ये तो आप डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर रहे हैं. तो आप चाहते